السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب البیوع باب الفرائض، فرائض وراثت کا بیان، سبق نمبر ہے 204۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبد الله بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر متفق علیہ۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وراثت کے مقررہ حصے ان کے حقداروں کو دو، پھر جو کچھ باقی بچ جائے وہ میت کے سب سے زیادہ قریبی مذکر مرد وارث کے لیے ہے۔ یہ باب ہے فرائض وراثت کے بیان کا۔ فرائض فریضہ کی جمع ہے، اس سے مراد وہ مقررہ حصہ وراثت ہے جو مرنے والے کی میراث سے کتاب و سنت کی روح سے وارثوں کو ملتا ہے، اور وہ حصے کچھ اس طرح ہوتے ہیں: آدھا، چوتھا، آٹھواں، 2/3، 1/3، چھٹا حصہ۔ تو اس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ جن کے حصے مقرر ہیں انہیں ان کے حصے دو۔ اہل فرائض سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے حصے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان ہوئے ہیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وارثوں کو ان کے حصے دینے کے بعد وراثت کے مقررہ حصے ان کے حقداروں کو دینے کے بعد جو باقی بچ جائے وہ میت کے سب سے قریبی جو نسب کے اعتبار سے مرنے والے کے زیادہ قریب ہو۔ اور یہاں شرط لگائی گئی ہے مذکر کی، مرنے والے کے مطلقاً سب سے زیادہ قریب اس کے بیٹے، پوتے، پڑ پوتے وغیرہ، اس کے بعد باپ، اور پھر دادا، پردادا، اور ان کے بعد بھائی، بھتیجے، ان کے بعد چچے اور ان کی اولادوں۔ یہ تمام اسبا ہیں، یہ تمام اسبا نسبی ہیں۔ اور اسی طرح علامہ امام نووی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ اس مسئلے پر اجماع ہے کہ اہل فرائض سے جو کچھ باقی بچے وہ اسبات کے لیے ہے، الاقرب فالاقرب کے ضابطے کے تحت۔ جب قریبی رشتہ دار موجود ہوں تو پھر دور کا عصبی رشتہ دار وراثت کا استحقاق نہیں رکھتا۔ اگلی حدیث، ان اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یرث المسلم الکافر ولا یرث الکافر المسلم، متفق علیہ۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ راوی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مسلمان کافر کا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا۔ کوئی مسلمان اپنے مرنے والے کسی کافر رشتہ دار کا وارث نہیں ہو سکتا، اسی طرح کوئی کافر اپنے مسلمان رشتہ دار کا وارث قرار نہیں پا سکتا، اور یہی جمہور علماء کرام کی رائے ہے۔ اگلی حدیث، ان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فی بنت وبنت ابن واخت فقد النبی صلی اللہ علیہ وسلم للابنۃ النصف ولابنۃ الابن
वलिबनतिल इबिन सुदुसु तकमिलत सुलुसैनी वमा बकिया फलिल उख्ती रवाहुल बुखारीयु। इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा रावी हैं, रिवायत करते हैं कि बेटी पोती और बहन के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की बाबत यह फैसला फरमाया कि बेटी को निस्फ आधा हिस्सा और पोती को 2/3 पूरा करने के लिए सुदुस छठा हिस्सा मिलेगा, फिर जो कुछ बाकी बचे वो बहन का होगा। तो इस हदीस में प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेटी पोती और बहन के बारे में कि इसके मुतल्लिक ये फैसला किया बेटी को आधा पोती को 2/3 पूरा करने के लिए छठा हिस्सा मिलेगा, जो बाकी बचेगा वो बहन का होगा। इसलिए कि पोती बमंजिला बेटी के होती है, लिहाजा पोती एक बेटी के साथ मिलकर बमंजिला 2 बेटियों के हो गई, और अगर 2 बेटियां हों तो इन्हें तरके में से 2/3 मिलता है, और जब तन्हा एक बेटी हो तो चूंकि वो आधे तरके की मुस्तहिक होती है तो अब 2/3 पूरा करने के लिए छठा हिस्सा ही बाकी बचता है, लिहाजा ये पोती को दे दिया। इस तरह दोनों को जमा करके मजमुआ 2/3 पूरा हो गया। बाकी जो बचे उसकी मुस्तहिक बहन है, इसलिए कि ये बेटी के साथ मिलकर असबा बनती है, लिहाजा अहले फराइज से जो कुछ बचेगा वो ये ले लेगी। अगली हदीस अन अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यतवारसु आलु मिल्लतैनी रवाहु अहमद वल अरबातु इल्ला तिर्मिज़िय्या व अखरजहुल हाकिम बिलफ्ज़ि उसामता व रवन नसाई हदीस उसामत बिहादल लफ्ज़ी। अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा रावी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 2 मुख्तलिफ दीनों के मजहबों के पैरोकार एक दूसरे के वारिस नहीं हो सकते हैं। तो इस हदीस में प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया 2 मुख्तलिफ दीनों के दीन से मुराद मजहब के पैरोकार एक दूसरे के वारिस नहीं हो सकते। तो 2 दीनों और 2 मिल्लतों से मुराद जो है वो जमहूर अहले इल्म के नजदीक इससे मुराद कुफ्र और इस्लाम है, यानी काफिर आपस में एक दूसरे के वारिस हो सकते हैं, लेकिन काफिर मुसलमान का या मुसलमान का वारिस नहीं हो सकता। जैसे पीछे उसामा बिन जैद की रिवायत गुजरी ला यरिसुल मुस्लिमुल काफिरा। तो जमहूर अहले इल्म के नजदीक 2 मिल्लतों से मुराद जो है वो कुफ्र और इस्लाम है। और इसी तरह इमाम औज़ाई रहिमहुल्लाह ने हदीस की उमूमियत की बुनियाद पर तमाम मिल्लतों को इसमें शामिल किया। फरमाते हैं कि यहूदी ईसाई का और ईसाई यहूदी का भी वारिस नहीं बन सकता, इसी तरह बाकी अदियान वाले भी। बहरहाल ये बात अपनी जगह पर साबित है कि मुसलमान काफिर का और काफिर मुसलमान का वारिस नहीं हो सकता। तो इस हदीस के अंदर फरमाया 2 मुख्तलिफ मिल्लतों दीनों के मजहबों के पैरोकार एक दूसरे के वारिस नहीं हो सकते हैं। अगली हदीस अन इमरान अब्न हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा क़ाल जाअ रजुल इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाला इन्नबनी माता फमाली मिन मिरासिही फ़क़ाला लकस्सुदुसु फलम्मा वल्ला दआहु फ़क़ाला लकस्सुदुसुन आखरू फलम्मा वल्ला दआहु फ़क़ाला इन्नस्सुदुसल आखिरा तुअमातुन
रवाहु अहमद वल अरबातु व सहाहु तिरमिज़ी व हुवा मिन रिवायतिल हसन अल बसरी अन इमरान वकीला इन्नहु लम यस्मा मिनहु। हजरत इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा रिवायत करते हैं कि एक आदमी नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहा, मेरा पोता वफात पा गया है, मेरा पोता वफात पा गया है, तो मेरा अपने पोते की मिरास में कितना हिस्सा बनता है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तुझे 6ठा हिस्सा मिलेगा। फिर जब वो जाने लगा तो आपने उसे बुलाया और फरमाया, तेरे लिए एक और 6ठा हिस्सा है। फिर वो जाने लगा तो उसे बुलाया और फरमाया, आखिरी 6ठा तेरे लिए रिज़्क है। ये रिवायत अगरचे सनदन ज़ईफ है, ताहम मानन सही है, क्योंकि मसला ऐसा ही है कि बिल फर्ज अगर मरने वाले के वारिस दादा और 2 बेटियां हों तो दादा को 6ठा हिस्सा, बेटियों को 2/3 और बकिया हिस्सा 1/6 भी दादे को मिलेगा। अगली हदीस, अन अब्दुल्लाह इब्न बुरैदता अन अबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्न नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जअला लिल जद्दति सुदुसा इज़ा लम यकुन दूनहा उम्मुन। रवाहु अबू दाऊद वन नसाई व सहाहु इब्न खुज़ैमह व इब्नुल जारूदी व कव्वाहु इब्न अदीय्यिन। अब्दुल्लाह बिन बुरैदा अपने वालिद हजरत बुरैदा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत करते हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दादी नानी के लिए 6ठा हिस्सा मुकर्रर फरमाया, जबकि इससे पहले मां न हो। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दादी हो या नानी, एक हो या ज्यादा, आला हो या असफल, अलबत्ता करीब की वजह से दूर वाली साकित हो जाएगी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके लिए 6ठा हिस्सा, जद्दा के लिए 6ठा हिस्सा जो है वो मुकर्रर किया। तो इस हदीस से ये मालूम हुआ कि अहले इल्म के नजदीक ये बात भी तयशुदा है कि यह हदीस इस बात पर दलालत करती है कि जद्दा, दादी या नानी मुतलकन मां की वजह से साकित हो जाएगी। और अहले इल्म ने यह कहा कि बाप की मौजूदगी में दादियां परदादियां सब साकित हो जाएंगी। और सुकूत की वजह यह है कि इनकी मैयत के साथ निस्बत मैयत के बाप के जरिए से है। और यह कायदा मारूफ है कि मैयत के साथ निस्बत रखने वाला इस शख्स की मौजूदगी में मैयत का वारिस नहीं बन सकता, जो इसकी निस्बत रिश्तेदारी का जरिया सबब है। प्यारे भाइयों, ये सबक नंबर 204 था। आज के सबक में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फराइज वरासत के ताल्लुक से हमें बताया कि किसको कितना हिस्सा मिलेगा। और प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने यह हुक्म दिया कि विरासत के मुकर्ररा हिस्से इनके हकदारों को दो। और यही बात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर इरशाद फरमाई है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने सूरत निसा के अंदर जो है वो विरासत के तमाम मामलात को बयान फरमाने के बाद इरशाद फरमाया, तिलका हुदूदुल्लाह व मन युति अल्लाह व रसूलहु युदखिलहु जन्नातिन। ये अल्लाह की हुदूद हैं, तो जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा वो जन्नत में दाखिल होगा। और फिर जन्नत में नहरें हैं और हमेशगी का रहना है और बड़ी कामयाबी है। व मन यासिल्लाह व रसूलहु व यतअद्दा हुदूदहु, जिसने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की और अल्लाह की हुदूद को पामाल किया, ऐसा बंदा जहन्नम में जाएगा। तो इसलिए प्यारे भाई, अल्लाह का भी यही हुक्म है, नबी अलैहिस्सलाम का भी यही हुक्म है कि मुकर्ररा हिस्से इनके हकदारों को दो। तो आज भाई बहन की विरासत खा जाता है और इसी तरह जो है वो
लोगों की विरासतों को हड़प कर लेते हैं, पटवारियों, तहसीलदारों, कानीगों, महकमा माल के लोगों से मिली भगत करते हुए समझते हैं कि हमने बड़ी होशियारी का काम किया, जबकि दरअसल ये बहुत बड़ी बर्बादी है और आखिरत को तबाह करने वाला मामला है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये चंद दिन की जिंदगी है, चंद दिन की जिंदगी, और याद रखिए असल दौलत वो इल्म की दौलत है, असल दौलत वो अमल की दौलत है। इल्म एक ऐसी दौलत है, आप इसको जितना खर्च करते चले जाएं ये उतना बढ़ता चला जाएगा। और सुभान अल्लाह, जिसने इल्म को फैलाया, इल्म सिखाया, उसको बराबर सवाब मिलता रहेगा और ये उसके लिए सदक़े जारिया होगा। देखिए कि अबुल फजल शहाबुद्दीन अहमद इब्न हजर अल अस्कलानी रहिमहुल्लाह, इनको इस दुनिया से गुजरे हुए, फोत हुए सदियां बीत चुकी हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं बुलूगुल मराम से हदीस पढ़ रहा हूं। अल्लाह की कसम है कि मेरा हदीस का पढ़ना और इस हदीस को रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप पर और फिर व्हाट्सएप से भाइयों का इसे यूट्यूब पर लगाना, फेसबुक पर पहुंचना, लोगों का सुनना, मेरा पढ़ना, आपको सिखाना, आपका सीखना, ये सारे का सारा सवाब अहमद इब्न हजर अल अस्कलानी रहिमहुल्लाह को पहुंच रहा है। मरने के बाद भी उनका अकाउंट ओपन है, सही मुस्लिम। तो इल्म एक ऐसी दौलत है, अमल एक ऐसी दौलत है कि इसको जितना खर्च किया जाए ये उतना बढ़ती चली जाती है। और याद रखिए यही असल दौलत है। ये दुनिया की दौलत और दुनिया का माल, इससे बड़ी बेवकूफी, इससे बड़ी हमाकत, इससे बड़ा धोखा कोई नहीं, अल्लाह की कसम। और हम इस हमाकत और धोखे में आकर लोगों के माल और विरासतों को हड़प कर जाते हैं, वारसों को उनके विरासतों का हक नहीं देते, पटवारियों और तहसीलदारों और महकमा माल वालों से मिलकर वारसों के हक खा जाते हैं और समझते हैं कि बड़े होशियार हैं। जनाब, हम बड़े समझदार हैं। अल्लाह की कसम, अल्लाह के घर में प्यारे नबी अलैहिस्सलाम की हदीस को सामने रखते हुए कहता हूं, इससे बड़ा दुनिया में कोई अहमक नहीं आया जो दुनिया के चंद टके खाए, वारसों को उनकी विरासत के हक से मारूम करे, बेटियों और बहनों का विरासत का हक दबा ले, वो बर्बाद हो गया, वो हलाक हो गया, वो जहन्नम का ईंधन बन गया। उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं जो दुनिया के चंद पैसों की खातिर अपनी हमेश हमेश की आखिरत को बर्बाद कर देता है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला से दुआ है कि या पाक परवरदिगार, तुझे तेरे प्यारे प्यारे नामों का वास्ता, तेरी प्यारी प्यारी सिफात का वसीला है, ए अल्लाह हमें इल्म और अमल की दौलत से माला माल कर दे। दुनिया का माल ए पाक परवरदिगार फकत इतना अता कर कि खाने पीने की दुश्वारी ना हो और या पाक परवरदिगार किसी के सामने हाथ फैलाना ना हो। ए अल्लाह, तुझे तेरे प्यारे नामों और तेरे प्यारी सिफात का वास्ता और वसीला है। ए अल्लाह, हमें इल्म और अमल की दौलत से माला माल कर दे। ए अल्लाह, हमें इल्म और अमल की दौलत से माला माल कर दे, ताहयात मेरी नस्ल को, हमारी नस्लों को, बेटी बेटों को, पोते पोतियों को, नवासे नवासियों को, ए अल्लाह इल्म और अमल की दौलत से माला माल कर दे, वो दौलत के जो कभी खत्म ना होने वाली। और दुनिया इतनी अता कर कि किसी के सामने भूख से परेशान होकर, ख्वाहिशात से परेशान होकर अल्लाह किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।